are going to start next chapter, chapter number 3, humidity and clouds. Okay, first of all, we are going to learn about can you tell. Okay, can you tell? Such a part is there. Look at the picture show in figure 3.1. Discuss the weather condition shown in these pictures in the class and write the descriptions in the below boxes. Okay. Then now these pictures are there. 3 pictures are there. Okay. And these below boxes are there. We should have to describe about the weather condition of the picture. Okay. Then first of all, we are going to watch the first picture there. Okay, in the first picture we are seeing here the camel is there. Then uh, two persons are standing there and they are talking something, and in the box, okay, in the box they are what they are talking we are seeing here. Okay, then the man is sitting there and who is talking about it is very sunny day, the wind has stopped blowing, I foresee sandstorms, लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस. तो यहाँ पे बैठा हुआ जो आदमी है वो क्या कह रहा है कि बहुत ही मतलब सनी डे है, बहुत ज्यादा वहां पे गर्म हो रहा है. द विंड हैज स्टॉप ब्लोइंग, और विंड जो है पूरी तरह से थम गई है, ब्लो नहीं कर रही है. आई फोरसी सैंडस्टॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि आगे अब सैंडस्टॉर्म आने वाला है, मतलब रेत का तूफान वहां पे आएगा. लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस, चलो जल्दी से हम हाउस के अंदर निकल जाते हैं. तो इस तरह से ये बैठा हुआ आदमी यहाँ पे बोल रहा है. एंड द बैकग्राउंड वी कैन सी दैट द कैमल इज देयर, देन द सैंडी लैंड इज देयर, देन रॉकी लैंड इज देयर. ओके, देन we seems that or we know that this part is the desert part. Okay, and every desert part is the hot part is there, that means the sunny days we can experience in that part. And the second person, the lady, is telling that yes, even I feel the same, come let's go fast. तो वो क्या कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब सैंडस्टॉर्म आने वाला है, मतलब रेत का तूफान आने वाला है, चलो जल्दी से हम यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब घर के अंदर बैठ जाते हैं. ओके, देन विच टाइप ऑफ वेदर इज हियर, hot weather is going on, then we can write here the hot weather. Okay, now here the next picture, and in that picture two persons are conversing with each other. Okay, the first person is saying buddy, it is very hot today, and the second person is saying yes Soham, I am literally soaked because of the sweat. तो फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या कह रहा है कि देखो भाई आज बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है. तो सेकंड पर्सन क्या कहता है, हाँ सोहम, मैं तो लिटरली मतलब पूरी तरह से स्वेट से मतलब पसीने से भीग चुका हूँ, है ना, पसीने की वजह से भीग चुका हूँ. ओके, दिस इज ऑल्सो अ हॉट weather. But what is the difference between these hot weather? In the first picture we can see here the dry hot weather is there, no sweat of these persons are there, no sweat, that means very less sweat will be there. And dry hot weather we can experience here, and here we can experience the humidity in the air. Okay, why? Because the second person is saying that he is totally soaked because of sweat. Okay, that's why. And now the next picture is there, we can see here the ice or the snow is fallen on the ground and the children are playing. And here I think that the mother of these children are here and she is giving something. What is there? I think that's the sweaters or uni cloths for the children is there. Then let's know that what is the mother saying to the children. Children, come fast, wear your sweaters and then play again. तो मदर वहां पे क्या कह रही है कि बच्चों यहाँ से जल्दी यहाँ पे आओ और अपने स्वेटर्स को पहन लो और फिर खेलो. ओके, देन द चाइल्ड इज सेइंग दैट मम्मी प्लीज वेट, लेट अस प्ले प्लीज. तो यहाँ पे जो बच्ची है वो क्या कहती है कि मम्मी थोड़ी देर रुको, हमें खेलने दो, है ना, इस तरह से वो कह रहे हैं. देन विच टाइप ऑफ वेदर वी आर एक्सपीरियंस हियर, वी आर एक्सपीरियंसिंग the cold weather is there. Okay, chilled weather
is okay, cold weather is there. Then the geographical explanation is here. Listen carefully which type of geographical explanation is about there. Generally, we keep talking about the weather condition. We can identify the weather condition through the conversation above. We experience the dampness and dryness in the air throughout the year. The changes occurring in the weather condition in desert area, coastal area, and mountainous area is evident from the figures. Okay, then व्हाट वी आर सीइंग हियर, तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरली हम यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन थ्रू द कन्वर्सेशन. अब ऊपर दिया हुआ जो कन्वर्सेशन है उससे हम वेदर कंडीशन को वहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. वी एक्सपीरियंस द डैम्पनेस एंड ड्राइनेस इन द एयर. तो एयर के अंदर कुछ ड्राइनेस और कुछ डैम्पनेस हम यहाँ पे मतलब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कन्वर्सेशन से. द चेंजेस ऑकरिंग द वेदर कंडीशन इन डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया में अलग से वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो है. उसके बाद कोस्टल एरिया और माउंटेनियस एरिया. ये इस फिगर के अंदर, यहाँ पे फिगर के अंदर अलग अलग तरह के वेदर कंडीशन बताए गए हैं. तो चलो, फर्स्ट थिंग इज देयर विच इज अबाउट द राजस्थान. दिस पिक्चर is about the Rajasthan or the desert part of the area. तो डेजर्ट एरिया का राजस्थान का पिक्चर यहाँ पे है. राजस्थान लाइज इन अ रीजन विथ ड्राई एंड हॉट एयर. तो हॉट और ड्राई ऐसी एयर वहाँ पे राजस्थान में होती है. देयर इज हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर. पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ. तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसा मॉइस्चर एयर में होता है. ओके, और वहाँ के पीपल जो है वो लूज कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं. हम यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं विच टाइप ऑफ अटायर दे वियर और दिस पर्सन्स वियर हियर. ओके, देन द सेकेंड, काश्मीर वैली लाइज इन अ रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर. तो काश्मीर वैली ये भी कोल्ड और ड्राई एयर में वहाँ पे है. मॉइस्चर इज मिनिमम इन द एयर. पीपल कवर देमसेल्व्स विथ वार्म क्लॉथ्स. तो यहाँ पे भी मॉइस्चर कम होता है. वहाँ के लोग जो है वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं? वार्म क्लॉथ्स, मतलब गर्मी देने वाले, गर्म ऐसे कपड़े पहनते हैं. इन मुंबई द एयर इज हॉट एंड ह्यूमिड. देयर a proportion of moisture is very high in the air. In condition, if dark cloud cover the sky, the content of moisture in the air increases. Okay, तो मुंबई के अंदर जो है एयर हॉट और ह्यूमिड वहाँ पे होती है और यहाँ पे हम मॉइस्चर का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एयर में महसूस करते हैं. तो ऐसे कंडीशन में इफ़ डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई, है ना, द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज इन द एयर इंक्रीजेस. अगर स्काई में डार्क क्लाउड वहाँ पे है तो एयर में मॉइस्चर का कंटेंट हमें बढ़ा हुआ वहाँ पे दिखता है. इन द अबव डिस्कशन द वर्ड्स हॉट, मॉइस्ट, कूल एक्सेट्रा. तो ऊपर जो डिस्कशन हम देख रहे हैं उसमें जो वर्ड्स है वो हॉट, मॉइस्ट और कूल, इस तरह के वर्ड्स हमें दिख रहे हैं. शो द कंडीशन ऑफ एयर. दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. तो इस कंडीशन से हमें किस चीज़ का रिलेशन वहाँ पे दिखाई देता है? तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसके बारे में जानकारी मिलती है. मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल. तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो इनविजिबल वहाँ पे होता है, वो दिखाई नहीं देता. ओके, बट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर इज विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस. तो मॉइस्चर इन द एयर इनविजिबल. तो ये जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता. बट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. तो एयर का सबसे बड़ा कंपोनेंट है ना, मतलब एयर जिन चीज़ों से बनी हुई है उसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट ये मॉइस्चर वहाँ पे होता है. देन विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस. किसी भी प्लेस के वेदर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो मॉइस्चर को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है. फॉर प्रेसिपिटेशन टू ऑकर
in any place, presence of moisture in the air is a very important. Okay, so for precipitation, that means rainfall. What is mean by precipitation? Precipitation means rainfall. Precipitation means rainfall. Okay, तो अगर रेनफॉल के लिए क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, मतलब वाटर पार्टिकल प्रेजेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर विच इज मॉइस्चर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे होता है. थिंक अबाउट इट. ड्यूरिंग विंटर व्हेन यू एक्सहेल on the glass of your mirror, what happen if you try to do this summer? Why doesn't this happen? देखो, विंटर सीजन में आपको क्या करना है कि ग्लास, कोई कांच है, ओके, ग्लास में उस ग्लास में, कांच में आपको क्या करना है? एक्सहेल करना है, मतलब मुंह पूरा खोल के जोरदार हवा बाहर निकालनी है. क्या होगा? तो जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपको वाटर पार्टिकल्स का प्रेजेंस दिखेगा. ओके, तो ये है मॉइस्चर. इफ यू ट्राई टू डू दिस इन समर, व्हाई डजंट इट हैपन? अगर समर में ये करने की कोशिश करोगे तो ऐसा क्यों नहीं होता? ओके, तो एक्सप्लोरेशन, सॉरी, इवेपोरेशन. Then what is evaporation? Evaporation is a process of converting water into a steam or a water vapor. तो इवेपोरेशन क्या है? तो वाटर का स्टीम में या वाटर वेपर में कन्वर्जन होना, उसे इवेपोरेशन कहा जाता है. ओके, इवेपोरेशन मतलब वाटर का स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्जन होना. बिकॉज ऑफ द सन्स हीट द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स, तो सन हीट की वजह से अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू अ वाटर वेपर. तो अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, सन की हीट की वजह से. द प्रोसेस ऑफ वेपर इज डिपेंड ऑन द ड्राइनेस. तो ये जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन की प्रोसेस, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑन द ड्राइनेस टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ विंड. इन 3 चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड होती है. फर्स्ट ड्राइनेस, सेकेंड टेम्परेचर और स्पीड ऑफ विंड, इसके ऊपर डिपेंड है इवेपोरेशन की प्रोसेस. ओके, इफ द एयर इज ड्राई एंड हॉट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. अगर एयर ड्राई और हॉट है तो इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होती है. इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होती है ड्राई और हॉट एयर में. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंडीशन इवन इन ड्राई एंड कोल्ड एयर. ओके, तो इवेपोरेशन की जो कंडीशन है वो ड्राई और कोल्ड एयर में भी वहाँ पे होती है. ऑन द अदर हैंड, इवेपोरेशन ऑकर्स वेरी स्लोली इन द मॉइस्ट एयर. ओके, मॉइस्ट एयर के अंदर इवेपोरेशन बहुत ही स्लो वहाँ पे होता है. इफ द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, अगर टेम्परेचर की वेलोसिटी, एयर की जो वेलोसिटी है वो और टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर की वेलोसिटी और टेम्परेचर ज़्यादा है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, एयर का स्पीड और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, देन इवेपोरेशन ऑकर्स रैपिडली. तो इवेपोरेशन वहाँ पे जल्दी से होता है. इफ द विंड इज ब्लोइंग स्लोली एंड द एयर इज कूलर, अगर विंड वहाँ पे धीरे धीरे बहती है, स्लोली ब्लो करती है, द एयर इज कूलर, और वहाँ की एयर जो है वो ठंडी है, देन इवेपोरेशन ऑकर स्लोली. तो इवेपोरेशन कैसा होगा? कम होगा. स्लो स्पीड और कूल एयर की वजह से इवेपोरेशन वहाँ पे स्लोली होगा. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट यूज योर ब्रेन पावर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन विच सीजन डू द क्लॉथ्स ड्राई फास्ट? कौन से सीजन में जो क्लॉथ्स है वो जल्दी से वहाँ पे ड्राई हो जाते हैं? वेरी गुड, तो समर सीजन इज द राइट आंसर. इन विच सीजन डू द क्लॉथ्स टेक टाइम टू ड्राई? What could be the reason? In rainy season. Why? Because the moisture is in high rate in the air in that season. तो रेनी सीजन में हवा के अंदर, एयर में मॉइस्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पे होता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी से नहीं सूखते. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी इन द एयर.
humidity in the air. The proportion of water vapor in the air is called its humidity. तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? तो एयर के अंदर वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन है उसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है. एयर में जो वाटर वेपर होता है उसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है. द ड्राइनेस और डैम्पनेस ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. तो एयर के अंदर जो ड्राइनेस है मतलब जो सूखापन है, और डैम्पनेस मतलब गीलापन जिसे हम कह सकते हैं. ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. ओके, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी. तो एयर जो है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, मतलब वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है. इट्स स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली. किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में स्पेसिफिक क्वांटिटी में वाटर वेपर को एयर होल्ड कर सकता है. एज एयर कूल्स डाउन इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस. अगर हवा एयर ठंडी होती है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब कम से कम वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है कूल एयर. सॉरी. दिस implies that warmer air can hold more moisture than cold air. अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एयर अगर वार्मर है मतलब गर्म है, गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, पकड़ सकती है, और कूल एयर जो होता है वो कम मॉइस्चर को वहाँ पे होल्ड करके रख सकता है. At a certain temperature, the moisture holding capacity of the air become equal to the proportion of moisture present in it. तो किसी सर्टन टेम्परेचर पे, किसी डिसाइड किए गए टेम्परेचर पे, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर बिकम इक्वल. तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो वहाँ पे इक्वल होती है. कैसे? टू द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. इसके जिस हवा के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसका जो प्रोपोर्शन है उतना ही वहाँ पे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उस एयर की होती है. दिस कंडीशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द एयर. और इस कंडीशन को सैचुरेशन ऑफ द एयर ऐसा कहा जाता है, सैचुरेशन ऑफ द एयर. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ट्राई दिस. ओके, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन ग्रुप. नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, उसे हमें ग्रुप में करना है. चलो एक्टिविटी क्या है देख लेते हैं. टेक अ कॉलेंडर ट्रे which is deeper in a center. Then take a piece of sponge on a flat part of tray. Make holes with the help of nails. Keep the sponge on the center of the tray or colander. Make sure there is no water in the sponge. Then pour water on the sponge with a big spoon. The students in the group should note how many spoons of water have been poured. Keep pouring water with the spoon till the sponge become wet and with water. Note what happens if you keep pouring water even after that. Now answer the following questions. एक्टिविटी कुछ इस तरह से हमें करनी है कि हमें इस तरह से एक ट्रे लेना है ना, जो बीच में मतलब डीप इस तरह का एक ट्रे लेना है. ओके, और उस ट्रे को इस तरह से होल कर देने हैं. उसके बाद उसके ऊपर एक स्पंज इस तरह से रख देना है, और उस स्पंज पे एक बड़े से स्पून से हमें वाटर डालना है. ओके, इस स्पंज के ऊपर वाटर डालना है और डालते रहना है. वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते रहनी है. ओके, तो ये सारे एक्टिविटी का आपको ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे दिए गए ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बताने हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. व्हाट हैपेंड टू द वाटर व्हिच वाज poured इनिशियली.
शुरू शुरू में जो वाटर स्पंज के ऊपर डाला गया उसके साथ क्या हुआ, है ना। द स्पंज एब्जॉर्ब्ड द वाटर, तो स्पंज ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है ना, सोख लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू वर पोरिंग वाटर ऑन द स्पंज व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस। जब आप स्पंज पे वाटर डाल रहे थे तो आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, है ना। व्हेन आई वर पोरिंग द वाटर ऑन द स्पंज आई एक्सपीरियंस दैट व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ। देन आई एक्सपेक्ट दैट द वाटर विल बी ड्रिपिंग बाय द होल्स ऑफ द ट्रे, तो ऐसा लगता है कि इस ट्रे के होल से वो नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्पंज ने उसे सोख लिया है। देन व्हाट हैपन व्हेन यू पोर्ड मोर वाटर ऑन द स्पंज, और भी ज्यादा वाटर डालने पे क्या हुआ, देन द वाटर रिवील द एक्स्ट्रा, the sponge reveal the extra water and the water dripping from the holes of the tray, तो ट्रे के होल से ये वाटर वहां पे ड्रिप होने लगा। ओके, व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस, तो किस तरह का कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। द स्पंज हैज अ specific capacity to soak the water or to absorb the water. If we pour the more water on the sponge than the observing or soaking capacity of the sponge, then it reveal the more water. Okay, तो ये sponge क्या करेगा, more water को वहां पे रिवील कर देगा। Okay, now the next part is about the geographical explanation. Okay, which we will learn into a next lecture.